बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मौजू जो आज है कसीदा शहर आशूब, तो कल मैंने आपको कसीदा की इब्तिदा और इर्तिका के बारे में बताया। तो आज हम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का कसीदा शहर आशूब पढ़ने जा रहे हैं। आप अपनी दरसी किताब के सफ़े नंबर 162 पर जाएं और कसीदे शहर आशूब को अच्छी तरह से पढ़ें। आशूब के लुग़वी माने हैं बर्बादी, बिगाड़ या फितना व फसाद। इस्तिलाही शायरी में शहर आशूब ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें किसी शहर की परेशानी, गर्दिश आसमानी और ज़माने की नाकदरी का बयान हो। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का कसीदा शहर आशूब दरअसल 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी में जो हिंदुस्तानियों को शिकस्त हुई अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, और अंग्रेज़ों ने जो जुल्म व सितम हिंदुस्तानियों पर ढहाया, उस की तस्वीर यहाँ खींची गई। ख़ास तौर पर दिल्ली शहर में अंग्रेज़ों ने अपना गुस्सा उतारा और इससे खूब तबाह व बर्बाद किया। शहर आशूब में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने मुख्तलिफ़ पेशों का ज़िक्र किया कि किस तरह हर नफ्स वाहिद ने रोज़ी रोटी कमाने में मुश्किलात उठाई। हर सू अफरा तफरी का माहौल था। तो इस शेर आशूब में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने अपनी ज़बान, अपने आप को मुखातिब करके शायराना कमाल दिखाया। तो कसीदा अर्ज़ है, अब सामने मेरे जो कोई पीरो जवां है, दावा न करे यह कि मेरे मुंह में ज़बां है। तो पीर कहते हैं बूढ़ा को, दावा कहते हैं ख्वाहिश, मुतालबा, यानी अपनी बात के दुरुस्त होने पर ज़ोर देना। ये शेर मोहम्मद रफ़ी सौदा के कसीदा शहर आशूब से लिया गया, चूँकि यहाँ जो शहर आशूब पर अशार कहे गए, ये उस शहर आशूब, कसीदा शहर आशूब का एक हिस्सा है, उससे माखूज़ है। तो सौदा फरमाते हैं कि मेरे सामने बूढ़ा या जवान कोई भी ये दावा न करे कि उसके मुंह में भी ज़बान है। मुंह में ज़बान होना यानी मैं भी कुछ कह सकता हूँ। यानी सौदा कहते हैं कि ऐसा कोई नहीं हो सकता जो मेरे सामने कुछ कहने की हिम्मत करे। जो कुछ मैं कह सकता हूँ और कहना जानता हूँ, वो सभी नहीं कह सकते हैं। तो इस शेर में भी वो शायराना तौला भी है, या हम इसको कहते हैं शायराना कमाल। मैं हज़रत सौदा को सुना बोलते यारो, अल्लाह रे अल्लाह है, क्या
نظم بیان ہے۔ میں حضرت سودا کو سنا بولتے ہو یارو۔ حضرت اصل میں تعظیمی کلمہ جو ناموں سے پہلے لگایا جاتا ہے۔ اللہ رے یعنی کیا کہنا، یہ حروف تحسین کہلاتا ہے۔ تو سودا خود اپنے ہی بارے میں کہتے ہیں، اپنے اندر کے شاعر سے کہتا ہے کہ میں نے حضرت سودا کو شعر کہتے ہوئے سنا ہے، اس کا کیا کہنا ہے، اس کی نظم خوانی کا انداز تو بہت ہی خوب ہے، اس کا انداز بیان اور اس کی زبان کتنی خوبصورت اور کس قدر شیرین ہے۔ اگلا شعر۔ اتنا میں کیا عرض کہ فرمائیے حضرت، آرام سے کٹنے کی طرح کوئی بھی یہاں ہے۔ عرض کرنا کہنا، گزارش کرنا، یہاں مینز یہاں۔ میں نے صرف اتنا پوچھا کہ حضرت آپ فرمائیے، یعنی سودا اپنے آپ سے خود مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اس دنیا میں کیا کوئی ایسا شخص ہے جس کی زندگی آرام سے گزر رہی ہے؟ یقیناً یہاں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی زندگی آرام سے گزر رہی ہو۔ سن کر یہ لگے کہنے کہ خاموش ہی رہ جا، اس امر میں قاصر تو فرشتے کی زباں ہے۔ امر کہتے ہیں بات کو، قاصر کہتے ہیں مجبور، ناچار، لاچار۔ سودا یہ بات سن کر کہنے لگے کہ خاموش ہی رہو، کچھ مت پوچھو کہ دلی میں لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ اس بارے میں فرشتوں کو بھی کچھ کہنے کی ہمت نہیں۔ اس سوال کا جواب دینے میں فرشتے بھی لاچار ہیں۔ اگلا شعر ہے۔ کیا میں بتاؤں کہ زمانے میں کہیں شکل ہے وجہ معاش اپنی، سو جس کا یہ بیاں ہے۔ وجہ معاش، روزگار یا روزی کا ذریعہ۔ سودا فرماتے ہیں کہ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ زمانے کے کتنے رنگ ہیں اور کس کس طرح لوگ اپنا پیٹ پالنے کے لیے مجبور ہیں۔ یہاں لوگوں کے ذریعے معاش طرح طرح کے ہیں، اور انہی روزی کے ذریعوں کا ذکر میں کرنے جا رہا ہے، تو لو دھیان سے سنو۔ اگلا شعر۔ گھوڑا لے اگر نوکری کرتے ہیں کسوں کی، تنخواہ کا پھر عالم بالا پہ مکاں ہے۔ کسو مینز کسی، عالم بالا پہ نشان ہونا یعنی پہنچ اور دسترس سے دور ہونا، ناقابل رسائی۔ سودا فرماتے ہیں کہ جو کسی کے ہاں گھوڑے کی نوکری کرتا ہے اور اپنی روزی روٹی کماتا ہے، کمانا چاہتا ہے، لیکن مالک کی طرف سے اب کو وقت پر تنخواہ نہیں ملتی، وہ تنخواہ کے لیے مجبور اور محتاج ہو جاتا ہے۔ وہ مالک کو اپنی تنخواہ مانگتا ہے، لیکن اس سے اس کی تنخواہ کبھی وقت پر نہیں ملتی ہے، کیونکہ تنخواہ دینے والا خود تنگ دست ہے۔ گویا نوکری کرنے پر بھی اجرت کے لیے ترسنا پڑتا ہے۔ اگلا شعر ہے۔ گزرے ہے صدا یوں الف و دانا کی خاطر، شمشیر جو گھر میں تو سپر بنیے کے ہاں ہے۔ الف و دانا
घास और अनाज, मवेशियों का चारा। सिपर कहते हैं डाल को। बुनिया कहते हैं आटा दाल बेचने वाला। मिर्ज़ा सौदा फरमाते हैं कि घोड़े के लिए घास और दाना चारा लाने में ही ज़िंदगी गुजर जाती है, यानी ज़रूरियात पूरी करने और रोज़ी तलाश करने में ही पूरी उम्र बीत जाती है, गुजर जाती है। गोया कमाई का ये हाल है कि शमशेर अगर घर में है तो ढहाल बुनिए की दुकान पर है, यानी जो भी कुछ कमा के लाता हूँ वो बुनिए की दुकान पर उधार चुकाना पड़ता है, और यूं ज़िंदगी के दिन कसम पुरसी की हालत में गुजर रहे हैं। अगला शेर है, सौदागरी कीजिए तो है इसमें ये मशक्क़त, दक्कन में बिके वो जो खरीद सफ़हान है। सौदागरी तिजारत, मशक्क़त मेहनत, दुख तकलीफ़। दक्कन जनूबी इलाका, खुसूसन जनूबी हिंद का इलाका। सफ़हान ईरान का एक शहर है। तो मिर्ज़ा सौदा फरमाते हैं कि अगर तिजारत करें तो इसमें भी बेतहाशा मेहनत करनी पड़ती है, मशक्क़त उठानी पड़ती है, और अशिया फिर भी नहीं बिकते हैं। अशिया कहते हैं चीज़ को। जो चीज़ें ईरान के शहर सफ़हान से खरीद कर लाई जाती है वो खुदा करके कहीं दक्कन जनूबी हिंदुस्तान में ले जाकर बिकती हैं, जो सफ़हान से सौदा के दौर में नहायत दूर और दुश्वार गुजार था। गोया तिजारत का काम भी अब मुश्किल और बेफ़ायदा हो गया। अगला शेर है, शायर जो सुने जाते हैं मुस्तगनीउल अहवाल, देखे जो कोई फिक्र व तरद्दुद को तो यहाँ है। मुस्तगनीउल अहवाल यानी मालदार, आसूदा हाल, जिनकी माली हालत बेहतर हो। तरद्दुद कहते हैं फिक्र, अंदेशा कहते हैं परेशानी। शायर जिनके बारे में ये सुनने को मिलता है कि ये खुशहाल हैं, यानी शायर अपने पेशे की वो हालत बयान करता है कि उनको कोई माली परेशानी नहीं है, लेकिन अब ये कहने की बातें रह गई हैं। अगर कोई करीब से उनको देखे तो शायर को फिक्र माश के साथ साथ अपनी शायरी के हवाले से भी 100 परेशानियां हैं। अगला शेर है, मुश्ताक़ मुलाकात उन्हों का कस व नाकस, मिलना उन्हें इससे जो फलां इब्न फलां है। कस व नाकस, अदना व आला, खास व आम, हर कोई। फलां यानी वो शख्स या चीज़ जो दहन में हो लेकिन उसका नाम लेना किसी वजह से मकसूद और मुनासिब न हो। तो शायरों से मुलाकात करने की हर छोटे बड़े और अदना व आला की ख्वाहिश रहती है, और शायर इस परेशानी में रहते हैं कि उन्हें मशहूर व मारूफ लोगों से ताल्लुक़ पैदा करना है ताकि वो वहाँ उनकी अगराज पूरी हो सकें। गर ईद का मस्जिद में पढ़ें जाके दुगाना, नेत कतआ तहनीत खाने ज़मा है। दुगाना कहते हैं ईद की नमाज, 2 रकत नमाज को। तहनीत यानी मुबारकबाद। खाने ज़मान बहुत बड़ा अमीर। घर ईद का मस्जिद में पढ़ें जाके दुगाना। तो शायर कहता है अगर शायर मस्जिद में जाकर 2 रकात नमाज पढ़ते हैं
تو ان کو نماز میں بھی اس طرف دھیان ہوتا ہے کہ فلاں نواب کو عید کی مبارکباد دینے کے سلسلے میں کوئی قطع تیار کرنا ہے۔ چنانچہ نماز کی نیت کے بجائے شاعر کے دل میں قطع کہنے کی نیت ہوتی ہے کہ ایسا قطع کہا جائے جس سے سن کر نواب خوش ہو جائے۔ تو انشاءاللہ کل اس کا ادھورا حصہ مکمل کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔